ছত্তিশগড়ের একটি জেলা বস্তার। এটি সুন্দরবন এবং উপজাতীয় সংস্কৃতির জন্য পরিচিত। এই কারণে এটিকে রাজ্যের সাংস্কৃতিক রাজধানী বলা হয়। বস্তার গ্রামের 70% জনসংখ্যা উপজাতীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, যেমন গোন্ড, মারিয়া, মুরিয়া, ভাট্রা, হালবা এবং ধুবো সম্প্রদায়। 24শে জানুয়ারি 2012 সালে বস্তার জেলা থেকে পৃথক করা হয় কোন্ডাগাঁও জেলাকে। আজ আমরা এই নকশাল আক্রান্ত কোন্ডাগাঁও জেলার এমন এক কৃষকের কথা বলবো, যিনি ইতিমধ্যেই দেশের সেরা কৃষক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। সাফল্যের মুকুটে রয়েছে রিচেস্ট ফার্মার অফ ইন্ডিয়ার খেতাব। কোন্ডাগাঁও জেলার মাটি থেকে উদিত এই সাফল্যের কাহিনী আজ গোটা দেশের প্রেরণা। কৃষক রাজারাম ত্রিপাঠী ভারতীয় কৃষিখাতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। 1100 একর জমিতে চাষ। অশ্বগন্ধা, কালমেঘ, ইনসুলিন ট্রি, স্টেভিয়া, অস্ট্রেলিয়ান সেগুন, হলুদ সহ 22টি ভেষজ গাছের চাষ করেন তিনি। তিনিই দেশের প্রথম কৃষক যার নিজস্ব হেলিকপ্টার রয়েছে। বছরে 25 কোটি টাকার টার্নওভার। ডক্টর ত্রিপাঠী ইতিমধ্যেই 12টিরও বেশি দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং সেখানকার কৃষি ও বিপণন পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করেছেন। বিএসসি গণিত, হিন্দি, ইংরেজি, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সহ 5টি বিষয়ে এমএ সহ এলএলবি এবং ডক্টরেট ডিগ্রি রয়েছে তার কাছে। দ্য রিচেস্ট ফার্মার অফ ইন্ডিয়া সহ সবুজ যোদ্ধা, কৃষি ঋষি, ভেষজ রাজা অ্যাওয়ার্ড রয়েছে তার ঝুলিতে। পাশাপাশি ডক্টর ত্রিপাঠী হলেন দেশের প্রথম কৃষক যিনি ভারত সরকারের বিভিন্ন কৃষিমন্ত্রীর কাছ থেকে এ পর্যন্ত 4 বার দেশের সেরা কৃষক হওয়ার পুরস্কার পেয়েছেন। এ তো গেল ওনার সাফল্যের কাহিনী, কিন্তু এই সাফল্য অর্জন করতে পথে এসেছে বহু কাঁটা। हम बस्तर के बहुत पिछड़े क्षेत्र में थे और बीएससी मैथमेटिक्स मैंने सबसे पहले किया जगदलपुर कॉलेज से, और उसके लिए हम 25 किलोमीटर रोज साइकिल चला के आते थे, 25 किलोमीटर जाते थे। लगभग 60 किलोमीटर प्रतिदिन हमें साइकिल चलाना पड़ता था टोटल। और उसके बाद वहाँ एमएससी नहीं थी तो हम एमए इकोनॉमिक्स किए, और फिर हमने सोचा कि लॉ कर लें तो शायद उससे नौकरी जल्दी मिल जाए, या वकालत कर लेंगे तो लॉ भी पढ़ा। फिर एमए हिस्ट्री किया, एमए हिंदी लिटरेचर किया, एमए सोशलॉजी किया, एमए इंग्लिश लिटरेचर किया, और अभी 6वां एमए अभी इस साल मैंने और मेरी बेटी दोनों ने एक साथ एग्जाम दिया है 6th एमए का। तो हम लगातार पढ़ रहे हैं, और मेरा मानना है कि पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि खेती एक अलग विधा है। यहाँ मार्केटिंग की भी ज़रूरत है, बैंक को समझने की भी ज़रूरत है। एग्रीकल्चर मतलब में कल्चर अपने आप में है, कृषि एक संस्कृति का भी प्रतीक है। तो खेती में जितना ज़्यादा आपको ज्ञान हो उतना ज़्यादा आप बेहतर खेती कर सकते हैं। কৃষিতে বিপ্লব আনার যুদ্ধ শুরু হয় 7 বছর বয়স থেকে। রাজারাম ত্রিপাঠীর দাদা 5 একর জমি কিনে চাষ শুরু করেন। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে দাদার সঙ্গে কৃষিকাজে সাহায্য করতেন ডক্টর ত্রিপাঠী। প্রথমে একটি কলেজে অধ্যাপক হিসেবে এবং তারপরে এসবিআই এর মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংকে ম্যানেজার হিসেবে প্রায় 7-8 বছর সরকারি চাকরি করেছেন তিনি। সরকারি এই কাজকর্মের ভিড়ে মন পড়ে থাকত কোন্ডাগাঁওয়ের মাটিতে।
প্রথমে শুরু করেন টমেটো, বাঁধাকপি ইত্যাদি গতানুগতিক সবজি রোপণ করে, কিন্তু লাভের মুখ না দেখতে পেয়ে নিয়ে আসেন অন্য হাতিয়ার। গোলমরিচ, সাদা মুসলি চাষ করেই শুরু করেন কৃষি বিপ্লব। তবে কথায় আছে, সাফল্যের চাবিকাঠি এত সহজে মেলে না। 2002 সালে যখন সফেদ মুসলির দাম কমে যায়, তখন তিনি অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হন, কিন্তু তিনি হাল ছাড়েননি। এরপর তিনি মিশ্র চাষ শুরু করেন। 2016 সালে অস্ট্রেলিয়ান সেগুনের সঙ্গে গোলমরিচের চাষ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান তিনি। এতে ভালো উপার্জন হয় তার। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। ये कहानी में सब कुछ एकदम परियों की कहानी जैसा नहीं है, बहुत उतार चढ़ाव वाला है। शुरुआती दौर में तो हमको प्रॉफिट हुआ, लेकिन कुछ समय बाद खेती में जो हम सफ़ेद मूंगफली उगाते थे उसके रेट एकदम से क्रैश कर गए। 1500-1600 रुपये किलो वाला चीज़ 500 रुपये में बिकने लगा 1/3 में, और हम धरती पे मुंह के बल आ गिरे। बैंक ने पैसे मांगने वापस चालू किए, हमारी ज़मीन नीलाम पे खड़ी कर दी। हम बहुत डिफेम हुए, क्योंकि जो हमसे मूंगफली खरीदता था वो या जो व्यापारी थे वो भी कन्नी काट लिए। बैंक ने भी वो दोबारा मदद करने से इनकार कर दिया, घाटा हुआ तो, क्योंकि एक बार डिफाल्टर हो गए तो। फिर लेकिन हमने खेती छोड़ा नहीं, हिम्मत नहीं हारी, और मेरे आदिवासी भाइयों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे परिवार ने, मेरे भाइयों ने, मेरी पत्नी ने, सबने मुझे पूरा साथ दिया, और हम वापस फीनिक्स की तरह अपने जले हुए राख से फिर खड़े हुए। खेती नहीं छोड़ा हमने, लगे रहे, और आज उसी सफ़ेद मूंगफली को जब आज हम चर्चा कर रहे हैं तो आज 2500 से 6000 रुपये किलो तक क्वालिटी के हिसाब से वो बिक रही है। 2021-22 সালের সমীক্ষা অনুযায়ী আমাদের দেশে প্রায় 62% মহিলা কৃষি কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত। তারই জলজ্যান্ত প্রমাণ রাজারাম ত্রিপাঠীর কোম্পানি মা দন্তেশ্বরী হার্বাল গ্রুপ। মা দন্তেশ্বরী হার্বাল গ্রুপের বার্ষিক টার্নওভার 25 কোটি ছাড়িয়েছে। রাজারাম ত্রিপাঠীর সঙ্গে 700টি আদিবাসী পরিবারের 1000 একর জমিতে জৈবিক পদ্ধতিতে যৌথ চাষ করছেন। এর মধ্যে বেশিরভাগই মহিলা। मेरा नाम अपूर्वा त्रिपाठी है और मैं माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह की क्वालिटी कंट्रोल डिवीज़न को देख रही हूँ। और ये समूह सन 1996 में डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी ने स्थापित करी थी। और मैं आज जिस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो है हमारा जो ब्रांड MD बोटैनिकल्स, जिसके अंडर हम लेकर आ रहे हैं 70 से अधिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, जिसमें हर्बल हीलिंग टीज़ है अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, बॉडी के लिए। कुछ डिटॉक्स टीज़ हैं, किसी में स्टीविया डाला हुआ है, और ग्रीन टी लीव्स, और अलग अलग जो बीमारियां हैं उनके लिए हेल्पफुल है। সংসার চালাতে এবং স্বনির্ভর হওয়ার জন্য রাজারাম ত্রিপাঠীর এই কোম্পানিতে যোগ দিয়েছেন বহু মহিলা। তাদের কথায় রুজি রোজগারের পথ দেখিয়েছেন ডক্টর त्रिपाठी। मेरे साथ काफ़ी महिला समूह काम कर रहे हैं, और माँ दंतेश्वरी के साथ जुड़ के हम लोग हर घर में मतलब अपने अपने गांव में, अपने अपने घर में खेती बाड़ी कर रहे हैं। पूरे हमारे साथ 400 परिवार जुड़े हुए हैं, और करीबन सभी लोग हमारे साथ हर्बल की खेती कर रहे हैं। বর্তমানে ডক্টর ত্রিপাঠীর কাছে রয়েছে মোট 9টি ফার্ম হাউস। 1100 একর জমির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে কৃষির ইমারত। কৃষিকাজের জন্য 7 কোটি টাকার একটি হেলিকপ্টারও কিনেছেন তিনি। 1100 একর জমি চাষ এবং কোম্পানি নিয়ে তার বার্ষিক টার্নওভার 25 কোটি টাকারও বেশি। 10টিরও বেশি দেশে ভেষজ হলুদের গুঁড়ো, আমলা সহ বিভিন্ন ধরনের ভেষজ পণ্য প্রক্রিয়াজাত করে বিক্রি করছে এই কোম্পানি। ये करीब 95-96 में शुरुआत हुई, और इस फार्म को जहां हम खड़े हैं, देश का पहला, मतलब जड़ी बूटियों का, मेडिसिनल प्लांट का पहला सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म का गौरव प्राप्त है। सन 2000 में इकोशर्ट जर्मनी से हम लोगों ने मेडिसिनल प्लांट के इस फार्म का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लिया था। और हाँ, ये जो पेड़ देख रहे हैं इसकी भी एक कहानी है। यहाँ हर पेड़ की एक कहानी है। और जैसे ये पेड़ है, जब APJ कलाम साहब को हम लोगों ने भेंट किया था औषधि पौधों के कुछ पौधे उनके हर्बल गार्डन के लिए, तो उससे पहले वो चाइना यात्रा पे थे, तो चाइना से उनको ये पौधा मिला था।
तो इसके 2 पौधे उन्होंने हमें गिफ्ट में दिए। इसको ट्री ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। हालांकि इसका फल बड़ा कड़वा सा होता है और कोई खा नहीं सकता, तो इसके औषधि गुण जरूर होते हैं, लेकिन ट्री ऑफ प्रॉस्पेरिटी भले इसके फल हम न खा पाएँ, लेकिन प्रॉस्पेरिटी के मामले में इस पेड़ ने वास्तव में हमें बड़ी प्रॉस्पेरिटी दी। और हम चाहते हैं ये प्रॉस्पेरिटी जो कलाम साहब का आशीर्वाद है वो हमारे ज़िले, प्रदेश ही नहीं पूरे देश को उसका फ़ायदा मिले। तो ये ट्री ऑफ प्रॉस्पेरिटी था। और दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एडिबल कलर अनाटो, उसके लंबे चौड़े बगीचे लगे हुए हैं। जो सेफ्रॉन यानी सबसे ज़्यादा महंगे रंग विश्व में, सेफ्रॉन यानी जिसे केसर कहते हैं, उसका शुद्ध जैविक विकल्प है। सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी या फायदा जिससे मिला है वो ये पौधे हैं ऑस्ट्रेलियन टीक और काली मिर्च, और इसके नीचे जड़ी बूटियों की खेती। क्योंकि ये मॉडल जो कहलाता है नेचुरल ग्रीन हाउस मॉडल, 1 एकड़ में पॉली हाउस बनाने के लिए 40 लाख रुपए लगते हैं, और यह जो है केवल 1,60,000 में तैयार हो जाता है। 40 लाख वाला जो पॉली हाउस है 7-8 साल में वो उसकी लाइफ होती है, उसके बाद 0 होता है। लेकिन ये जो मॉडल है ये 7-8 सालों में कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपया का लकड़ी और साथ ही साथ काली मिर्च देता है। काली मिर्च की इकोनॉमिक्स के बारे में अभी और बताया जाएगा, लेकिन लकड़ी की अगर आप देखेंगे ये बेहतरीन क्वालिटी की लकड़ी ये देता है। भारत सरकार के स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उनके 3 डायरेक्टर आए और उन लोगों ने पिछले 2-3 सालों में लगातार इस फसल पे के आकलन किया, और फिर उन्होंने एक लेख लिखा है जो बड़ा फेमस हुआ है, ब्लैक गोल्ड इन बस्तर। उसमें उन्होंने तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर लिखा कि हाँ, यह काली मिर्च भारत का गेम चेंजर हो सकती है। की जड़ जो है बड़ी खास चीज है, यहाँ आगे दिखा रहे हैं। इसकी जड़ की खासियत यह है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये नोट्स दिखाएंगे आप, ये जो छोटे छोटे ये दिख रहे हैं दाने, ये नाइट्रोजन जो है 79% जो वायुमंडल में है उसको लेके पूरा भर देता है नाइट्रोजन से। तो ये नाइट्रोजन की एक तरह से फैक्ट्री भी है, और ये सीधा सीधा ये नाइट्रोजन काली मिर्च के पौधों को भी मिलता है, और यही कारण है कि इसका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा है। কারোর জীবনে সাফল্য সহজে আসে না, অনেক কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্যের সিঁড়ি পার করে তবেই মিলে সাফল্যতা। এই পথের সঙ্গী হয় বিভিন্ন চড়াই উতরাই, তারই শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত ডক্টর রাজারাম त्रिपाठी। खेती में समृद्धि की संभावनाएं हैं, केवल हमको डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर खेती करनी पड़ेगी। ये नहीं कि सारे लोग एक ही चीज उगाने लग जाएं। जो भेड़ चाल है उससे उबरना होगा, मार्केट के अनुसार उगाना होगा, और क्वालिटी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। खेती में अगर प्रॉफिट चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि क्वालिटी आप मेंटेन करिए, कमिटमेंट पूरा करिए। कई बार हम कस्टमर को इंडिया में जो व्यापारी बोल देते हैं कि हाँ जितना बोलो मिल जाएगा, और तुरंत कमिट कर लेते हैं, उनके पास माल नहीं रहता, फिर यहाँ वहाँ ढूंढना चालू करते हैं, देश की छवि खराब होती है। और हमारा जो वॉल्यूम था, अमेरिका को जो घमंड था कि हमारी क्वालिटी कोई मैच नहीं कर सकता, जो एफडीए के उनके नॉर्म्स हैं वो नहीं कर पाएगा, बार बार हमारा मैंगो, हमारी मिर्ची सब वो रिजेक्ट करते थे। हमने लगातार करीब 5 साल तक उनको माल दिया, और पूरा का पूरा कसौटी पे खरा उतरा, हमारा कंसाइनमेंट रिजेक्ट नहीं हुआ, और हमने सिद्ध किया कि भारत के किसान आपसे, आपकी जो अपेक्षा है उससे बेहतर क्वालिटी उगा भी सकते हैं और दे भी सकते हैं।